the last topic of phase rule. It is magnesium zinc system. This is a reactive system in which the two components they react with themselves and they form a compound. The phase diagram is this one. It is magnesium zinc system. So the two component they react to form a compound, and that compound is MgZn2. If you look the picture from the far, then this picture seems to be a fusion of two phase diagrams. One, it is ranging from 420 degree side A and up to the 590 degrees Celsius middle one. Then another one starting from 590 degrees Celsius and ending at the magnesium, it is 650 degree Celsius. Let us discuss how to explain it. तो इसमें जो पहले लाइन आपको नजर आ रही है, फर्स्ट लाइन, here you are looking, I have written 0.0, 0.2, that is mole fraction of the one component only. Which component? Where it is 1.0, this line represents the magnesium line. This line represents the magnesium line. So magnesium is 100% here, and wherever it is 0, it is magnesium is 0% here. But this line corresponds to the zinc. So zinc is 100% here, and zinc it is 0% at this point. Now let us start from the first point, first line here. At point A, that is the melting point of the zinc. The melting point of the zinc is 420 degrees Celsius, 420 degrees Celsius. As you move away from this line, it means the 100% zinc is not left, but you are successively adding magnesium to this zinc. So by the successive addition of the magnesium to the zinc, its melting point falls to a point V, which is 380 degrees Celsius. So by the successive addition of the magnesium to the zinc, the melting point of the zinc will fall. So this line represents the melting or fusion of the zinc by the addition of the magnesium. As we reach at point V, there is separation of a compound MgZn2. So this much percentage of magnesium it is sufficient to cause a reactive system, so that zinc reacts with the magnesium to form MgZn2. तो B पॉइंट के बाद MgZn2 की सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगी. तो ये जो ऊपर पॉइंट लाइन नजर आ रही है B से C तक, इस लाइन के नीचे नीचे जो है मैग्नीशियम MgZn2 सेपरेट होता रहेगा, एंड द लाइन क्रॉसेस जस्ट लाइक दिस वे. वैसे तो B से C के बजाय, इसको अंडरस्टैंड करने के बजाय उल्टा अंडरस्टैंड किया जाता है. C to B, 590 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड MgZn2. एज यू एड जिंक, मूवमेंट कहां की तरफ है? इस तरफ को है. इस तरफ का मतलब है जिंक इंक्रीज हो रहा है. सो एड वी आर एडिंग जिंक टू द MgZn2, इट्स मेल्टिंग पॉइंट सक्सेसिवली डिक्रीज एंड डिक्रीजेज अप टू द 380 डिग्री सेल्सियस. हमेशा उनको एंड पॉइंट से अगर आप डिस्कस करेंगे यूटेक्टिक पॉइंट तक, बी इज द यूटेक्टिक पॉइंट, तो उसको डिस्कस करने में आसानी होगी. यहां से मैंने जिंक स्टार्ट किया था कि जिंक 100% है, उसमें मैग्नीशियम ऐड कर रहे हैं, तो जिंक का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता गया. कहां हो गया? 380 डिग्री सेल्सियस तक. कहां से? 420. यहां पर कौन सा कंपाउंड है? MgZn2. किस वजह से बना? वो मैग्नीशियम और जिंक रिएक्टिव सिस्टम है, तो रिएक्टिव सिस्टम होने की वजह से MgZn2 बन रहा है. 590 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट है. जैसे ही आप इस साइड मूवमेंट आते हो, वापस इसको डिस्कस करते हो C से B तक, इट मीन्स वी आर मूविंग टू द जिंक साइड. इट मीन्स सक्सेसिव एडिशन ऑफ जिंक इज देयर, that is decreasing the melting point of MgZn2. So melting point of MgZn2 decreases along this line and it falls up to the 380 degree Celsius. Now start from the 590 degree Celsius, C to D. This is again fall in the melting point of MgZn2. It decreases up to 347 degree Celsius. तो देखने वाली बात है, एक साइड भी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, दूसरी साइड भी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है. किसका? MgZn2 का.
एक साइड जिंक की एडिशन है, कितना टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, ओनली 380 डिग्री सेल्सियस। दूसरी साइड मैग्नीशियम की एडिशन है, तो उसी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है 347 डिग्री सेल्सियस। कितना डिक्रीज कर रहा है? 347 डिग्री सेल्सियस। एज यू रीच एट पॉइंट डी, then no more separation of MgZn2 is there, no more formation of MgZn2 is there, but now it is separation of magnesium starts. So along this line D to E there is separation of the magnesium plus liquid. I have written which liquid? It is liquid melt. Melt means molten metals are there. So D से E तक जो है वो मैग्नीशियम की सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। या द्वारा जैसे पीछे मैंने बोला कि इसको अलग वे से डिस्कस करने का तरीका ये है कि इसको एंड पॉइंट से ई से डी तक डिस्कस करो। तो ई इज प्योर मैग्नीशियम, यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दिस लाइन, इट मीन्स यू आर एडिंग जिंक टू द मैग्नीशियम। सो एट जिंक इज सक्सेसिवली एडेड टू द मैग्नीशियम, its melting point falls from 650 degree to the 347 degree Celsius. So it is a fusion of two curves. One is zinc and MgZn2, another is MgZn2 and the magnesium, and collectively that is a magnesium zinc system. That is a magnesium zinc system. अब पॉइंट इसमें एरियाज डिस्कस करते हैं। ये जो ऊपर का कर्व का एरिया है ए बी सी डी ई के ऊपर का एरिया, इसमें लिक्विड मेल्ट का मतलब है बोथ मेटल्स वेदर मैग्नीशियम और जिंक दे आर प्रेजेंट इन द मोल्टन स्टेट। इसमें MgZn2 भी है लेकिन वो भी मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट है, तो सारा का सारा सिंगल फेज ही काउंट होगा। कहां कहां प्रेजेंट हो सकता है? सी हियर, यहां मैं अगर बात करूं कि कौन सी लाइन की, AB लाइन की, तो AB लाइन के यहां बाहर जो है मोल्टन जिंक और मोल्टन मैग्नीशियम है। जब मैं इस C पॉइंट की बात करता हूं तो C पॉइंट पे आपके पास यहां मोल्टन MgZn2 होगा और नीचे सॉलिड MgZn2 होगा, because 590 degree Celsius is the maximum melting point of the MgZn2. इस साइड को इसका मेल्टिंग पॉइंट फॉल करेगा बाय द सक्सेसिव एडिशन ऑफ जिंक। परे वाली साइड भी इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है बाय द सक्सेसिव एडिशन ऑफ मैग्नीशियम। एक साइड इसका मेल्टिंग पॉइंट 380 डिग्री सेल्सियस तक फॉल करता है, दूसरे साइड इसका मेल्टिंग पॉइंट 347 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज करता है। व्हाट इज द पर्टिकुलर कंपोजिशन एट विच द कंपाउंड इज फॉर्म्ड? विच कंपाउंड? MgZn2. दैट कंपोजिशन इज 0.33%. it is magnesium and 67% it is zinc. तो वैसे इसको चेक करके देख लो कि मैग्नीशियम सिंगल पार्ट है, जिंक 2 पार्ट में है, तो अगर टोटल पार्ट हो गया आपके पास 3 पार्ट्स का मतलब है 1 पार्ट एंड 2 पार्ट, तो 33 के हिसाब से 100 को डिवाइड कर दो, तो एक पार्ट जो 33 का आ गया 33%, और 2 पार्ट्स जो वो कितनी हो जाएंगे 67%। तो फार्मूला से आप इस लाइन को याद कर सकते हो कि कितने पॉइंट पे जो है वो आपके पास MgZn2 कंपाउंड जो उसका मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। जो C पॉइंट है, C पॉइंट के पास आपके पास एक ही फेज बचेगा। अब जैसे और जगह है वहां आपके पास अलग अलग फेजेस हैं, लेकिन चलो पहले C पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। इस पॉइंट के ऊपर आपके पास सॉलिड स्टेट में भी MgZn2 है और लिक्विड स्टेट में भी MgZn2 है। क्या? लिक्विड स्टेट में MgZn2, सॉलिड स्टेट में भी MgZn2। तो फेजेस आपके पास कितने हो गए? 2, एक लिक्विड में MgZn2, एक सॉलिड MgZn2, लेकिन कंपोनेंट एक ही हुआ, तो इट इज C minus P plus 1 minus 2 plus 1 that is equal to 0. So that point is non-variant point. C point is non-variant, it is fixed. B point पे आपके पास क्या है? अगर ये वाला साइड चेक करते हो, इससे A B वाली साइड, तो इसमें जिंक की सेपरेशन है प्लस लिक्विड, इस साइड MgZn2 प्लस लिक्विड कॉमन हो गया, तो जिंक और MgZn2 आ गया। ऊपर लिक्विड है मोल्टन मेटल, तो उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है।
नीचे जिंक सॉलिड और MgZn2 है, जिंक और MgZn2 की बात हो चुकी है। तो इसमें 3 फेज आएंगे आपके पास, वन इज जिंक सॉलिड, अनदर इज MgZn2 सॉलिड, अनदर वन इज मेल्ट। तो बिकॉज हेयर वी आर हैविंग द 3 कंपोनेंट्स, सो सॉरी कंपोनेंट्स इज 2 मैग्नीशियम और जिंक, तो फेजेस आ गए आपके पास 3, तो इट इज C minus P plus 1, component 2 minus phase is 3, 2 minus 3 that is minus 1 plus 1 that is due to the temperature। तो कितना हो गया आपके पास 0। इट मीन्स B is नॉन वेरिएंट पॉइंट। जस्ट लाइक D पॉइंट को डिस्कस करते हो, तो D पॉइंट में जो एक साइड आपके पास लिक्विड और MgZn2 है, दूसरे साइड लिक्विड है, लिक्विड लिक्विड कॉमन हो गया, सो वन टाइम काउंटेड। इस साइड सॉलिड मैग्नीशियम है, ऊपर मेल्ट है तो मेल्ट भी सिंगल टाइम, तो MgZn2 और नीचे दोनों ही प्रेजेंट है, तो सिंगल टाइम काउंटिंग होगी। तो आपके पास यहां पर कितने कंपोनेंट आ गए, मेल्ट, मैग्नीशियम सॉलिड, MgZn2। अगेन यू आर पुटिंग द कंपोनेंट 2, phases 3, so C minus P plus 1, so it is 2 minus 3 plus 1 that is equal to 0 again, so D point is non variant point। क्या बोलेंगे इसको आप, नॉन वेरिएंट पॉइंट। अगर ये लाइन आप डिस्कस करना चाहते हैं, एनी लाइन, इट इज ED लाइन, तो इस लाइन में इस साइड मैग्नीशियम सॉलिड है, ऊपर मैग्नीशियम लिक्विड में होगा, तो आपके पास एक फेज मेल्ट आएगा और दूसरा फेज क्या आएगा, मैग्नीशियम। सो अलोंग दिस लाइन इट इज कंपोनेंट 2, along this line phase is 2, one is magnesium, another is the melt, so 2 minus 2 plus 1, it is 1, degrees of freedom is equal to 1 along this line, it means it is monovariant, it is monovariant। so any line you discuss here from E to D, D to C, C to B और B to A, सारी की सारी लाइंस आपके पास मोनोवेरिएंट आएंगी। क्या आएंगी, मोनोवेरिएंट आएंगी। If you check this liquid melt area, then what degrees of freedom we can assign to this? Degrees of freedom again F is equal to C minus P plus 1। तो मेल्ट में आपके पास एक ही फेज है, क्या, मोल्टन मटेरियल, सो फेज 1 कंपोनेंट 2, सो इट इज C minus P plus 1, so 2 minus 1 plus 1 that is equal to 2, so जो एरिया आपके पास that will be Y variant, that will be Y variant। इसमें आप कंसंट्रेशन भी चेंज कर सकते हो, इसमें आप टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हो। लेट अस डिस्कस वन ऑफ द एरिया विच इज लाइंग हेयर बिलो द लाइन CD और बिलो एनी लाइन हेयर। C और D के नीचे का अगर एरिया में देखने चाहूं, तो इस एरिया में मेरे पास कितने कंपोनेंट हैं, 2, मेल्ट भी है इसमें और MgZn2 भी है, तो कंपोनेंट भी 2 हो गए आपके पास। उसके बाद फेजेस भी 2 हो गए आपके पास, इट इज 2 minus 2 plus 1, इट मीन्स इट इज मोनोवेरिएंट। So this point again it is monovariant, that point again it is monovariant, this point again it is monovariant। और ये जो नीचे वाला सिस्टम है जिंक सॉलिड और MgZn2, again 2 component monovariant, this is again monovariant। So magnesium zinc system is a reactive system in which magnesium and zinc react to form a compound MgZn2। MgZn2 is such a compound which is stable up to its melting point, that is 590 degrees Celsius। तो उस पॉइंट तक स्टेबल है, तो हम कहेंगे दिस पॉइंट इज द कंग्रुएंट पॉइंट बिकॉज द कंपाउंड इज नॉट डिकम्पोजिंग प्रायर टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट। सो दिस इज ए सिस्टम दैट रिप्रेजेंट्स कंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, और वो कंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट आएगा 590 डिग्री सेल्सियस। पीछे हमने डिस्कस किया था सोडियम क्लोराइड और वाटर का सिस्टम, वहां पर NaCl और 2H2 एक कंपोनेंट बनता है, एक कंपाउंड बनता है, लेकिन वो कंपाउंड पहले ही डिकम्पोज हो जाता है 0.0015 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो उस पॉइंट को हम बोलेंगे इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। और ये वाला मेल्टिंग पॉइंट कौन सा हुआ, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट हुआ। तो इस तरह से आप मैग्नीशियम और जिंक सिस्टम को जो वो डिस्कस कर सकते हो। ये 2 कर्व्स का या 2 फेज सिस्टम का फ्यूजन आएगा, एक जिंक और MgZn2 और दूसरा MgZn2 और मैग्नीशियम का। जब भी आपने डिस्कस करना है, यू स्टार्ट फ्रॉम द वन पॉइंट एंड स्टार्ट जस्ट लाइक दिस वे। ए के ऊपर जिंक 100% है, तो जिंक का मेल्टिंग पॉइंट 420 डिग्री सेल्सियस आ गया।
As you move away from the zinc line, it means you are successively adding magnesium to the zinc. So by the successive addition of magnesium to the zinc, its melting point falls to 380 डिग्री सेल्सियस. उसी तरह E पॉइंट से चलते हो तो E पॉइंट जो वो 650 डिग्री सेल्सियस मैग्नीशियम, प्योर मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट है. As you move away from this line, it means that you are adding zinc to the magnesium. So by successive addition of the zinc, its melting point of successive addition of the zinc to the magnesium, the melting point of magnesium, it falls up to 347 degrees Celsius. If you start from the center at point C, it is the compound MgZn2. तो अगर एक साइड आप मूव करते हो मैग्नीशियम साइड को, तो बाय सक्सेसिव एडिशन ऑफ मैग्नीशियम मेल्टिंग पॉइंट MgZn2 का 347 डिग्री सेल्सियस तक फॉल होगा. और अगर आप दूसरी साइड डिस्कस करते हो C से लेके B तक, so melting point of the MgZn2, it will fall from 590 degrees Celsius to 380 degrees Celsius. So this is the end of this chapter. We will discuss the new chapter later on.